بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری۔ حویلی لکھا میں پسند کی شادی کی رنجش پر نوجوان کی ٹانگیں اور بازو توڑ ڈالے۔ نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 ماہ بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ مظاہرین کا مقدمہ میں قتل کی دفعات شامل کرنے کا مطالبہ۔ حافظ آباد میں دنیا بھر کی طرح 21 رمضان المبارک بسلسلہ شہادت مولا علی بڑے عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شفقت علی پہلوان سے۔ جی شفقت، تفصیلات سے آغاز کیجیے گا۔ بعد میں بھی آج 21 رمضان بسلسلہ شہادت حضرت علی علیہ السلام جو ہے بڑے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جو کہ حافظ آباد میں 3 جلوس جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں، جس میں کلہاڑے شاہ کا مرکزی جلوس ہے جو برآمد ہوتا ہے، اور پولیس کی جانب سے فل پروف جو سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ 300 سے زیادہ جو ہے مہارت رکھنے والے نشانہ باز وہ بھی چھتوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ وال تھرو گیٹ حافظ آباد میں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر مکمل طور پر چیک کر کے آنے جانے دیا جا رہا ہے، اور اس والے سے اس جلوس کے جو بانی ہے بابا چاند شاہ وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ وہ سیکورٹی کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیونکہ حافظ آباد جو یہ بہت پرامن شہر ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولا امیر الاسلام حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر یہ جو جلوس برآمد ہوگا، تو ماشاءاللہ سیکورٹی کے بڑے اچھے انتظامات ہیں۔ تو پورا یہاں سے لے کے تقریباً آدھا کلومیٹر کا یہ روٹ ہے، اور جس میں سیکورٹی کے حوالے سے بالکل فول پروف جو ہے انتظامات ہیں۔ آج ان کا کہنا ہے کہ جو انتظامیہ ان کی جانب سے سیکورٹی کے بڑے اچھے انتظامات ہیں، کیونکہ حافظ آباد شہر یہ ویسے بھی بہت پرامن ہے۔ یہ جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوگا۔ جی 21 رمضان المبارک یوم علی کے موقع پر لاہور میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ اور انتظامیہ کے افسران نے میٹرو بس ٹریک سے کربلا گامی شاہ کا جائزہ لیا۔ رانا سعید کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ 21 رمضان المبارک یوم علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر لاہور میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی میٹرو بس ٹریک آمد، ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوثر، ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی سیکیورٹی، پولیس اور ضلع انتظامیہ کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے میٹرو بس ٹریک سے یوم علی کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر نے سی سی پی او لاہور کو سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریف کیا۔ اس موقع پر سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام افسران و جوان سماج دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھیں۔ راولپنڈی اسٹیشن پر مسافر کی جان بچانے اور بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آئی جی ریلویز ڈاکٹر راؤ سردار علی خان نے 1 لاکھ روپے کیش ریوارڈ اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ رانا سعید کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ چند روز قبل ہیڈ کانسٹیبلان لال روز خان اور عدیل احمد نے ریلوے اسٹیشن راولپنڈی پر مسافر کو بڑے حادثے سے بچا لیا تھا۔ ریلوے مسافر کاظم سلیم راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر چلتی ٹرین رحمان بابا سے اتر رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے ٹرین کے نیچے آنے لگا، تو پلیٹ فارم پر موجود ریلویز پولیس اہلکاروں نے حاضر دماغی اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسافر کی بروقت امداد کو دوڑے اور مسافر کو ٹرین کی زد میں آنے سے بچا لیا تھا۔ واقعے کی فوٹیج چند روز تک سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتی رہی۔ آئی جی ریلویز نے ریلویز پولیس اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے دونوں ہیڈ کانسٹیبلان کو سینٹرل پولیس آفس ریلویز مدعو کر کے کیش ریوارڈ اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ آئی جی ریلویز کا کہنا تھا کہ محنتی، قابل اور فرض شناس اہلکار اور افسران ریلویز پولیس کا اثاثہ ہیں، اور اچھی کارکردگی کی حوصلہ افزائی سے عملے میں مزید جوش اور ذمہ داری نمایاں ہوتی ہے۔ مزید کہنا تھا کہ فرض شناس اہلکاروں اور افسران کی حوصلہ افزائی کی روایت برقرار رکھیں گے۔ وفاقی ریلوے وزیر خواجہ سعد رفیق کی ہدایت پر مسافروں کی سہولت اور عید پر سفر کرنے والوں کے رش کے پیش نظر عید الفطر پر اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا گیا۔
पंजाब के कदीम कस्बा एमनाबाद में वाक़ 500 साल पुरानी मस्जिद फन तामीर का अजीम शाहकार है। मुस्लिम, सिख और हिंदू की तामीरात की वारिस इस लोधी मस्जिद का तर्ज तामीर इंतहाई महारत भरा और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। जानिए तारीखी लोधी मस्जिद की कहानी गजनफर शाह की जुबानी। गुजरांवाला के नवाही इलाके एमनाबाद की ये तारीखी मस्जिद 1451 ईस्वी में लोधी दौरे हुकूमत में तामीर की गई। लोधी मस्जिद की तामीर में छोटी ईंट के साथ साथ जिप्सम, चूना और दालें भी इस्तेमाल की गईं। सदियों पुरानी ये मस्जिद किसी सुतून, लेंटर और कंक्रीट के बगैर आज भी मजबूती से कायम और दायम है। मैं यही कहूँगा कि ये एक इंतज़ामिया की सितम ज़रीफ़ी है कि 500 साल पुरानी तारीखी मस्जिद है जिसकी शेप बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती है। वो हिंदुओं ने शहीद कर दिया है, इंतहा पसंद हिंदुओं ने, और यहाँ करप्ट हुक्मरान और करप्ट इंतज़ामिया ने अदम दिलचस्पी से ये शहीद करा दिया। अगर मैं कहता फिल फार फॉर वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है तारीखी, वो लोधी दौर की, और जो एमनाबाद कस्बा है वो एमनाबाद से एक तरीही, इस कस्बे की एक तरीही हिस्ट्री है, ठीक है। दीवान वहाँ के मशहूर है, यहाँ लोधी दौर की वो मस्जिद है। और मैं यही कहूँगा कि फिल फार फॉर डीसी साहब से मुतालबा करो, डीसी गुजरांवाला से, कि उसको अपनी कस्टडी में लेकर और आपने आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए भी अपना आखिरत भी संवारे और मस्जिद को सही शेप में और उसको सही हालत में आबाद किया जाए। खूबसूरत गुंबद वाली लोधी मस्जिद का शुमार पाकिस्तान की सबसे कदीम मसाजिद में किया जाता है। इसके अकब में कई एकड़ पर फैला हुआ तालाब शानदार लोधी हुकूमत की याद दिलाता है। जी बिल्कुल, ये जो मस्जिद है ये बहुत पुरानी है। हमारे आबा अजदाद जो है ये बताते आ रहे हैं कि ये मस्जिद बहुत ही कीमती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये खंडरात का मंजर पेश करने लगी है और इबादत के लिए बिल्कुल बंद हो चुकी है। और यहाँ बच्चे आकर क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, तालाब का पानी खड़ा हो जाता है, और ये जो इबादत गाह इसको दोबारा तमीर करके इंतजामिया लोगों के लिए इबादत के लिए खोल दे। बाबरी मस्जिद से मुशाबहत रखने वाली ये लोधी मस्जिद तारीखी मकामात से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए अहम सियाहती मकाम का दर्जा रखती है। हुक्काम अगर इस इस्लामी आसार कदीमा के नादिर नमूने पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। कई सदियां पुरानी ये लोधी मस्जिद तारीखी जो है हैसियत रखती है। गुजरांवाला के अंदर इमनाबाद के अंदर वाक़ है, उसका आधे से ज़्यादा रकबा जो काबजीन ने अपना कब्जा कर रखा है, और बाकी जो मांदा है उसका रकबा है उस पर जो है वो खंडरात के अंदर ये मस्जिद तब्दील हो चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया से हमारा ये मुतालबा है कि इसकी रेनोवेशन की जाए, सर नौ इसकी तामीर की जाए, ताकि एक कीमती तारीखी और मजहबी जो विरसा है इसकी जो है हिफाजत की जा सके। ये गुजरांवाला का नोही इलाका इमनाबाद, जहां बाबरी मस्जिद की तर्ज की बनी मस्जिद 500 साल पुरानी लोधी मस्जिद जो खंडरात का मंजर पेश कर रही है, अगर ज़िला इंतज़ामिया इस पर तवज्जो दे और इसकी तमीरें नौ शुरू करे तो सेहत को फ़रोग दिया जा सकता है। कैमरामैन अदील शाह के साथ गजनफर शाह, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम की हदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जा से 1 लाख रुपए नकद, 5 अदद मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया। अकील इस्माइल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस ने साबका रिकॉर्ड याफ्ता शाहिद उर्फ शादू डकैत गैंग के 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान रात की तारीकी में घात लगाकर बैठे थे कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 1 लाख रुपए नकद, 5 मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान डकैती, राहजनी और चोरी की संगीन वारदातों में मुलविस हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने गुजरांवाला और उसके मुजाफात में वारदातें करने का इंकशाफ किया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम का कहना है कि डकैतों, चोरों और समाज दुश्मन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निमटते हुए शहरियों को अमन की फजा फराहम करेंगे।
मिंचनाबाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फ्री आटा रमजान रिलीफ पैकेज इंतजामिया की करप्शन की नजर हो गया। मुफ्त आटे के 8000 थैले हिसाब किताब से गायब कर दिए गए। मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मिंचनाबाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फ्री आटा रमजान रिलीफ पैकेज इंतजामिया की करप्शन के नजर हो गया। मुफ्त आटे के 8000 थैले हिसाब किताब से गायब हो गए। मिंचनाबाद रमजान पैकेज मुफ्त आटे के 8000 थैलों की मालियत 92,80,000 रुपए बनती है, जो बहुत बड़ी रकम है। जबकि मिंचनाबाद फ्री आटा पॉइंट पर गरीब आवाम 10 किलो आटे के एक थैले के लिए सुबह से शाम तक लाइनों में धक्के खाने के बावजूद मायूसी की हालत में खाली हाथ घर वापस चले जाते हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद के खिलाफ पहले भी रोड ब्लॉक करके मुजाहरा किया था। शहरियों का कहना है कि गरीब का हक इंतजामिया खा गई। अफसरान से करप्शन का हिसाब कौन लेगा? मिंचनाबाद के सियासी और समाजी हलकों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब से इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने PR सेंटर चिन्योट में किसानों को बारदाने का इजरा करके गंदम खरीदारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मेहर अब्दुल रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने PR सेंटर चिन्योट में किसानों को बारदाने का इजरा करके गंदम खरीदारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस सिलसिला में महकमा फूड की जानिब से एक मुख्तसर सी तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने फीता काट कर और किसानों को बारदाना का इजरा करके गंदम खरीदारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीर और दीगर फूड डिपार्टमेंट के अफसरान और काश्तकार नुमाइंदगान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतसार जमीन ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस साल जिला चिन्योट में 50,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए जिला में 5 गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं, जिसमें तहसील चिन्योट में 2, तहसील लालिया में 2 और तहसील भवाना में 1 गंदम खरीदारी मरकज शामिल है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों को गंदम का बेहतरीन रेट दिया गया है। मुकर्ररा मुद्दत का मतलूबा टारगेट पूरा किया जाएगा और किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदा जाएगा और इन्हें इनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सीनियर नायब सदर डॉक्टर असलम खान शेरवानी ने कहा है कि मुफ्त आटे के नाम पर कौम की तजलील जारी है। वफाकी हुकूमत की इस चौबाजी से कौम रुस्वा होकर रह गई, जिसका हिसाब किताब आने वाले इलेक्शन में ये कौम पूरा करेगी। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। लोगों की तजलील कम हो। आप देखें कि इसमें जो ना इस तरीके से तकसीम करने से कितनी करप्शन हो रही है, कितने केसेस करप्शन के आपके सामने हैं। शेखुपुरा में कम से कम 5-6 केसेस ऐसे हैं जो करप्शन के केस दर्ज हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरह तकसीम करें जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में, और आप जो है वो देखें कि एहसास प्रोग्राम किया, सेहत कार्ड किया, हर गरीब आदमी का डेटा नादरा से प्रोसेस हुआ, उसके मुताबिक उनको रिस्पेक्टेबल वे से जो है उनको कार्ड इशू हुए और उनके घरों में जाकर उनको पैसे मिले। तो आप भी कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी रखें, ऐसा कोई प्रोसेस, कोई मेथड डेवलप करें जिससे इन लोगों की तजलील। और आप देखें आटा लेते लेते वो लोग मर रहे हैं और बेचारे एक बंदा जो है वो कोई 10 थैले ले जा रहा है, किसी को एक भी नहीं मिल रहा, और वो सुबह से लेकर शाम तक एक आटा का थैला है, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। और मेरे यही है इशू कि इनके एक तो क्वालिटी इंप्रूव करें और अपना सिस्टम को डेवलप करें। इंसाफ वेलफेयरिंग गुजरात के नायब सदर चौधरी शहजाद अब्दुल्ला का कहना है कि इमरान खान मुखालिफिन के असाब पर सवार हैं। चौधरी परवेज इलाही की PTI में शमूलियत से पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। आम इंतखाबात में PTI क्लीन स्वीप करेगी। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने स्पेशल TV की ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक अवान से बातचीत के दौरान किया। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह से अपोजिशन में हैं आप और हुकूमत जिस तरह से अपने मुख्तलिफ जो है ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, या हुकूमत जो है वो इमरान खान पर ही तवज्जो किए हुए है, इस पर आप क्या राय देंगे? सर देखिए, हुकूमत को तो इमरान खान के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरा ख्याल है वो सोते जागते ख्वाबों में उठते बैठते बस इमरान खान है। अच्छा, उनकी स्पीचेस में से अगर इमरान खान निकाल दिया जाए ना तो बाकी कुछ भी नहीं रहता। तो मैशत तो सारी दुनिया को नज़र आ रही है, यानी कि कहाँ हमारा मुल्क था दुनिया की नज़रों में। हमारे ओवरसीज़ भाई फ़ख्र से लोगों को बताते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और प्यूटिन और मतलब जितने सुपर पावर्स के हेड है वो फ़ख्र महसूस करते थे खान के साथ बैठने को, खान को मिलने को। बड़ा अच्छा इम्प्रेशन था, और वो इम्प्रेशन भी गया, वो मैशत भी गई,
बिल्कुल इन्होंने जो है ना पाकिस्तान को उठा के ज़मीन के नीचे समझे गाड़ दिए। अब फिर से खान साहब की हुकूमत आएगी, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी उनको, फिर से कौम को भी उनका साथ देना पड़ेगा इस मुल्क को किसी लेवल पे ले जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन 90 डेज के बाद का कह दिया, इस पर आपको क्या लगता है कि हुकूमत इलेक्शन करवाएगी? सरासर आइन शिकनी है ना जी, और मुझे मतलब मैं परेशान होता हूँ कि किस तरह ये इस तरह धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक लॉ बनाया है। लॉ जो है ना, देखिए आइन में कोई तब्दीली लानी हो तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी। अब 362 का मेरा ख्याल है कोरम है नेशनल असम्बली का, तो 42 बंदों के सिग्नेचर से ये एक लॉ बना रहे हैं। वो भी ऐसा लॉ जो ये नहीं बना रहे, क्योंकि ये प्रोसीजर लॉ है और ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी डोमेन में आता है। ये वो सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें चेंजेस ला सकता है। तो अगर इन्होंने करना है तो ये तो 2/3 मेजोरिटी से लेंगे। और फिर मजे की बात कि इनके किसी बड़े लीडर के सिग्नेचर नहीं है उन 42 बंदों में, इनका कोई बड़ा लीडर नहीं है। ना नवाज शरीफ साहब है, ना बिलावल है, ना ऐसा, मतलब ये बड़े लीडर्स जो है ना वो कोई भी नहीं है। ये जो इनके वो मखसूस सीटों वाले और वो जो अननोन किस्म के बंदे हैं बेचारे, उनको इन्होंने आगे कर दिया कि कल को कंटेम्प्ट लगे तो इन पे लगे। तो ये तो मतलब इलेक्शन को नहीं रोक सकते। लेकिन ये अगर इलेक्शन को ये रोकेंगे तो फिर ये बनाना रिपब्लिक है, फिर जिसका जो दिल करेगा वो करेगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से गुजरात की सियासत है और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं, जम किया खुद को उन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती रहनुमा हैं, कारकुन हैं, कैसा लगा उनको इस अमल से? देखिए मेरा ख्याल है जो तो नजरियाती कारकुन है उसको तो अगर उसकी पार्टी की ताकत बढ़ रही है किसी ऐसे बड़े लीडर के आने से तो उसको खुश होना चाहिए। तो खुश आइंद है परवेज इलाही साहब का आना। और एक और शख्सियत भी आई हैं पीटीआई में, चौधरी एजाज रनिया साहब, उनको भी वेलकम करते हैं, ये भी बड़ा खुश आइंद है। और गुजरात की पीटीआई में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में फिर सैयद फैजुल हसन शाह का अगर नाम ना लें तो बात अधूरी रहती है। सैयद फैजुल हसन शाह साहब ने अपने हलके में बहुत, ये लोग जो कहते हैं ना कि कहाँ पे डेवलपमेंट है, मैं उनको कहता हूँ कि सैयद फैजुल हसन शाह साहब का हलका देख लें, गांव, हर गांव देख लें, हर गांव में देख लें आप, सड़कें देख लें, गैस का काम देख लें, बिजली देख लें, गलियां देख लें, मतलब उन्होंने इतना काम किया है। और उनके नीचे जो एमपीएस थे उन्होंने भी, तो बड़ा काम हुआ है। और सैयद फैजुल हसन शाह साहब एक दरवेश सिफ्त आदमी है। इस तरह के एमएनएस हमें चाहिए। देखिए उनकी सादगी भी अरूज पे, और उन हर वक्त अवेलेबल हैं वो लोगों के लिए, मतलब 24 घंटे उनका डेरा खुला हुआ है। उनके भतीजे, उनके भाई सब जो हैं वो अपने हलके के लिए हर दम वो बैठे हुए हैं। और गुजरात में इंशाल्लाह ताला, गुजरात में क्या पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी का कहना है कि इमरान खान को यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता इजाजत लेकर दावत दी थी। इस मौका पर किसी को भी पीटीआई जिंदाबाद का नारा लगाने की इजाजत नहीं थी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में किया। मेरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बुलाने का मकसद ये था कि एक जो उनका सियासी ख्याल है, जो सोच है, जिसको बहुत सी दुनिया सुनती है, वो डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे सुने। ठीक है। और ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि जब मैंने इस बात की इजाज़त दी थी तो मैंने ये शर्त लगाई थी कि वहाँ पर कोई पीटीआई जिंदाबाद या पीटीआई के झंडे और टोपियाँ या उनके एंटी कुछ स्लोगन्स वहाँ पे वो नहीं कुछ नहीं होंगे। ठीक है। इमरान खान जिंदाबाद के नारे जरूर लगे हैं, बच्चों ने जज्बाती होकर लगाए, लेकिन कोई पार्टी का नारा नहीं लगा, कोई झंडे नहीं लहराए गए। और सारा खर्चा पंजाब गवर्नमेंट, उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने हमें दिया। और उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी एचईडी थे, उन्होंने मुझे इजाजत दी इन राइटिंग कि आप तकरीब अपने इंस्टीट्यूशन में करें और इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके मेहमान खुसूसी। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।